Hello everyone. This video is another one in the series of basic concepts of auditing or the fundamental or building blocks of auditing that I have been bringing up. I have already shared some videos on other basic concepts like internal control, audit procedures, misstatements, management assertions, true and fair view, sampling risk, non-sampling risk, what is audit sampling. So if you want a clarification on any of these topics, you can go and watch the videos. I'll share the link in the description box below. Also, do not forget to hit the subscribe button and also the bell icon beside it so that you get notified whenever I post other updates. And if you like the video, do hit the like button. So today's topic that I've chosen is auditor's report. In this video, we'll be discussing the types of auditor's opinion or the types of audit report. But before going into that, let me tell you what actually auditor's report is. If simply we speak, auditor's report is a report which is being issued by the auditor of any organization. Now, what will be stated or expressed in this report? इस report में actually होगा क्या, है ना? ये question दिमाग में आता है कि report के अंदर auditor क्या बताएगा हमें? So let us recall the audit process first. Whenever the auditor conducts audit, they perform a lot of audit procedures, including your risk assessment procedures and substantive audit procedures. Now, when the auditor performs the audit procedures, they obtain audit evidence out of it. They obtain audit evidence. And what kind of audit evidence should the auditor rely upon? Just a question. What kind of audit evidence should the auditor rely upon? Please write in the comment section below and let's see whether you know this or not. What kind of audit evidence should the auditor rely upon? So this is a question I'm putting up to all the users. You need to comment in the comment section below. Let's see. So yeah, the auditor obtains a lot of audit evidence and पूरे ऑडिट एविडेंस पूरे थ्रू आउट द ऑडिट जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले उन सब का एक एग्रीगेट रिजल्ट जिसे कहा जाता है ऑडिट कंक्लूजन. एक ऑडिट कंक्लूजन को ऑडिटर डिराइव करते हैं. Now the auditor forms an audit opinion based on this audit conclusion. Audit opinion यानी क्या? Audit opinion on the fact whether the financial statements show a true and fair view or not, whether they are presented appropriately as per the applicable financial reporting framework. यानी कि जो भी लॉ है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है, मैं डिटेल में बताऊंगी क्या होता है, उसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं या नहीं करते हैं. ट्रू एंड फेयर व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग. इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू. तो इसी को ऑडिटर एक्सप्रेस करता है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. Okay, this was all about what is auditor's report. Now let us discuss the types of auditor's report. As you can see in this chart, मैंने काफी simplified way में put up किया है. कितने type की auditor's report होती है? 3 types. First one is the unmodified report. Then second is modified report, but the opinion is unmodified. The third one is modified report and the opinion is also modified. So पहले से start करते हैं. Ma'am, what is unmodified report? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है. ऑडिटर इज सेइंग एवरीथिंग. और in audit terms, if I say financial statements show a true and fair view, they are presented fairly in all material respects as per the applicable financial reporting framework. What is financial reporting framework? Say if it's a company that we are going for auditing, एक कंपनी की ऑडिट की जा रही है, तो शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और द इंड एस एज में बी एप्लीकेबल, इसके हिसाब से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाएगी. तो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी इज शेड्यूल 3, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और द इंड एस. Now, whether the financial statements are prepared as per Schedule 3, following all the Ind AS और accounting standards or not, इसके ऊपर ऑडिटर एक ओपिनियन देता है और ऑडिटर ने कहा है कि सारा कुछ कंप्लायंस किया गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है. नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आर देयर. मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स क्या होती है, इसके ऊपर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी मिस स्टेटमेंट्स की वीडियो को जाके देख सकते हो. तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स. अगर ऐसा सिचुएशन है, ऐसी सर्कमस्टांस है, तो ऑडिटर जिस तरह की रिपोर्ट देता है उसको हम कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट.
एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको लॉजिक बताऊंगी कि इसको अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड क्यों कहते हैं, ठीक है, बट वो एंड ऑफ द वीडियो में बताएंगे, पहले हम पूरा चीज को समझ लेंगे। सेकेंड वन इज मॉडिफाइड रिपोर्ट बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब रिपोर्ट मॉडिफाइड है बट जो ओपिनियन है वो अभी भी अनमॉडिफाइड है। ओपिनियन यानी कि अभी भी हम कह रहे हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। बट रिपोर्ट मॉडिफाइड क्यों है मैम? रिपोर्ट मॉडिफाइड है बिकॉज ऑफ द ईओएम और द ओएम पैरा। व्हाट इज ईओएम? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर्स पैराग्राफ एज पर एसए 706। इसके बारे में डिटेल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना जान के रखें कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ विच लेज एम्फेसिस ऑन एनी मैटर विच इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उस मैटर के ऊपर बात करी है, हम सिर्फ उसके ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए, यूजर्स की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए टुवर्ड्स दैट मैटर, वी एम्फेसाइज एंड वी पुट इट in the emphasis of matter paragraph. And other matter paragraph is any paragraph which is included in the auditor's report so as to give clarification or make things clear regarding the auditor's responsibility, या और किसी मैटर को लेके अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ कहना चाहता है which is not there in the financial statements but which is important for the users to know, so that is included in the other matters paragraph. Now if these two paragraphs are there in the auditor's report, ये जरूरी नहीं है कि हर ऑडिटर की रिपोर्ट में होगा ही, ठीक है, अगर ये ऑडिटर की रिपोर्ट में रहा तो उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट बट द ओपिनियन हियर इज अनमॉडिफाइड। Clear? Now the third one which is the most important for us to know is modified report and also modified opinion। मतलब रिपोर्ट भी मॉडिफाइड है यहाँ पे, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, और ओपिनियन भी मॉडिफाइड है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर किए गए थे, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे थे, यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब क्या गड़बड़ है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ऑडिटर ने कंक्लूड किया है, ठीक है। और दूसरा वाला जो हिस्सा आता है ये है कि ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन SAAE यानी कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला कि वो एक ऑडिट कंक्लूजन पे आके एक ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करके एक रिपोर्ट इशू कर, राइट। सो ये केस बहुत ही खतरनाक है कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला। एंड द फर्स्ट वन इज ऑडिट एविडेंस मिला और ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। पहले पार्ट को हम और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे आसानी से समझते जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल। सो द फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर वन, इफ यू सी, इट्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन। नंबर टू इज द एडवर्स ओपिनियन। Qualified opinion means the financial statements show a true and fair view. True and fair view show करते हैं subject to certain reservations. Say for example, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ले लें या किसी भी एंटरप्राइज का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लो, उसमें कैश बैलेंस होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, पेबल्स, कैपिटल, रिजर्व्स, you have cash and bank balance, you have inventories, you have investments, you have a lot of elements. Suppose everything else is showing a true and fair picture except for the inventories. Inventories में कुछ material misstatements हैं, तो उस केस में क्या आप ये बोल दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी गड़बड़ है, कंप्लीटली मटीरियली मिसस्टेटेड? नो, वी कैन नॉट से दैट। Financial statements are showing a true and fair view subject to certain reservation which is inventory. सिर्फ इन्वेंट्री में ही मटेरियल मिस्टेक, ठीक है। इस केस में हम देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे आप देख रहे हो मटेरियल बट नॉट परवेसिव मैंने लिखा है, इसका मतलब मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। फिर हम वापस इस टॉपिक पे एक बार आएंगे, मटेरियल परवेसिव को समझने के बाद अगेन आई विल कम टू दिस टॉपिक। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती है सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस ओनली, देन वी इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। On the other hand, if financial statements are not showing true and fair view, that means they are not free from material misstatements, पूरा का पूरा financial statements में ही गड़बड़ है,
then we issue an adverse opinion. This will not be adverse, this will be adverse opinion. ठीक है, adverse opinion इस केस में issue करेगा ऑडिटर. ये QO AO वगैरह जो लिखा है ये एक्रोनिम्स है ताकि आप लोग याद रख सको. ठीक है, दूसरे केस में अगर हम जाते हैं ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस में मैंने दो लिखा है, देखिए, क्वालिफाइड ओपिनियन और एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो ये डिपेंड करता है कि जो SAAE या ऑडिट एविडेंस नहीं मिला उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है, मटेरियल है, परवेसिव है, कि मटेरियल नॉट परवेसिव है, मटेरियल एंड परवेसिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस. ठीक है, देखो मैंने दिया है यहाँ पे 2 फैक्टर्स विच डिटर्मिन द टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. So there are two factors which actually determine कि आपको QO देना है कि AO देना है कि DO देना है, डिस्क्लेमर देना है. ठीक है, वो दो फैक्टर क्या है अभी तक आप जान ही गए होंगे. दे आर मटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस. नाउ मैम, व्हाट इज मटीरियलिटी? Materiality is anything which influences the economic decisions of the users of financials. I repeat again, anything or any amount, ठीक है, anything, any amount which influences the economic decision or the financial decision of the users of financial statements. Relative significance of matter for decision making of the users. ठीक है, यानी कि कोई अगर छोटी कंपनी है उसमें मे बी एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs विल मैटर अ लॉट. ठीक है, बट बड़ी कंपनी है तो उसके लिए एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs डजंट मैटर एट ऑल. So 10 lakhs is material for the previous company but not material for the other big company. So materiality is a subjective matter, depends on the size, scale of organization, the type of organization and a lot of other circumstances. So it depends on the auditor's professional judgment. Auditor अपनी professional judgment को use करके decide करता है कि material है कि नहीं है. ठीक है, so the first factor that we take into consideration is materiality. What is the second factor? The second factor is pervasiveness of the matter. परवेसिव शब्द का ही अर्थ ये होता है कि वो सब चीजों को, बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो परवेसिवनेस को मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है. जो भी मैटर है जिसकी वजह से आप मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो, यानी हमारे पहले एग्जांपल में इन्वेंट्रीज में कुछ मिस स्टेटमेंट्स थी, तो इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन ठीक से नहीं की गई थी. ठीक है, AS2 वाज नॉट कंप्लाइड विद, जस्ट फॉर एग्जांपल. तो जो इन्वेंट्रीज के वजह से आप मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो, that matter is not confined to specific FS elements. मतलब वो इन्वेंट्रीज और भी चीजों को अफेक्ट कर रही है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को अफेक्ट कर रही है, आपके पेबल्स को अफेक्ट कर रही है. उस हो सकता है उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें इन्वेंट्रीज इज अ सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन्वेंट्रीज एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इट इज परवेसिव, यानी सर्वव्यापी. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सर्वव्यापी है, वो सब चीजों को अफेक्ट कर रहा है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. Or maybe the disclosures in the financial statements are fundamental to users understanding. ठीक है, ऐसे कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए या गलत दिए गए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर ऐसी 3 चीजें, ये 3 चीज अगर होती है, तीनों में से कोई भी एक, तो हम कहते हैं कि मैटर जो है वो परवेसिव है, यानी बहुत चीजों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के काफी एलिमेंट्स को अफेक्ट कर रही है. जो उसका वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, मिस स्टेटमेंट का वेटेज इज वेरी हाई. ठीक है, तो दो मैटर्स हो गए, दो फैक्टर्स हो गए रादर. वन इज मटीरियलिटी, अनदर वन इज परवेसिवनेस. नाउ लेट अस गो अगेन टू आवर टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियंस. तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिस स्टेटेड है, यानी मिस स्टेटमेंट्स है, ठीक है, बट वो मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल तो है पर परवेसिव नहीं है, यानी कि सब चीजों को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन. ठीक है, और अगर मटेरियल है, यानी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स एज वेल एज इट इज वेरी परवेसिव, यानी कि इट is not just confined to specific FS elements, it's a substantial proportion of the FS, या फिर disclosures are very important for users understanding, तो उस केस में हम देते हैं adverse opinion. अभी आते हैं, अगर ऑडिट एविडेंस ही ऑडिटर नहीं ऑब्टेन कर पाया, तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया तो वो ये जान ही नहीं पाएगा कि इसका जो इफेक्ट है वो मटेरियल है, परवेसिव है. बट ऑडिटर हैज टू असेस कि इसका जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है, इसका जो पॉसिबल इफेक्ट है कि हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, द पॉसिबल इफेक्ट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव. इंपॉर्टेंट है, बट इट आई डोंट थिंक कि अगर मुझे ऑडिट एविडेंस मिलता तो भी ये
परवेसिवली सब चीजों को अफेक्ट करता। इफ दैट इज द केस तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। एंड अगर मटेरियल भी है और ऑडिटर को लगता है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आइटम था जिसका मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर को फिर ये परवेसिवली भी अफेक्ट कर रहा है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को, सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन हो सकता है मे बी। If it is pervasive and material, then the auditor has to issue a DO, that is disclaimer of opinion. That means the auditor will say in this report that because of the significant effect of the matters stated in the basis for opinion paragraph, because these matters are so significant, so important, and the auditor has not been able to obtain audit evidence regarding it, so the auditor is unable to express an audit opinion or derive any audit conclusion out of it. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द फॉर्म ऑफ ऑडिट ओपिनियंस दैट कैन बी गिवन। एक बार सम अप करते हैं। 3 टाइप की रिपोर्ट्स होती है। वन इज अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, next is modified report but the opinion is unmodified, and the third one is report modified, opinion also modified. उसमें 2 parts हैं। One is the financial statements are materially misstated, second one is auditor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. Depending on the materiality and pervasiveness of the matter which is resulting in your modified opinion, the auditor will issue a qualified opinion or adverse opinion or disclaimer of opinion. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि इसको अनमॉडिफाइड क्यों बोलते हैं और जहां कुछ गड़बड़ होती है उसको हम मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं। बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ SA 700 में जो ऑडिट ओपिनियन की लैंग्वेज है, इट सेज कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं तो ऑडिटर अपनी जो ओपिनियन देगा, इट इज that the financial, in my opinion and to the best of the information and explanations given to me, the financial statements are presented fairly in all material respects as per the applicable FRF, and they show a true and fair view. The balance sheet and the statement of PL account show a true and fair view. ठीक है, तो ये ऑडिट ओपिनियन की लैंग्वेज है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं होती है, सब कुछ सही होता है, तो हम डायरेक्टली उसी लैंग्वेज को पिकअप करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालते हैं। That means we are not actually modifying the language of the audit opinion as given. Hence, the term unmodified opinion, unmodified report. On the other hand, अगर financial statements true and fair view नहीं show करती है, the ideal picture should be that financial statements show a true and fair view. Now, if it is not ideal, you have to change the language of your report. You have to go to SA 705, which is regarding the modifications of audit opinion, और आपको वहां से जो phrasing है वो पिकअप करनी पड़ती है। Hence the name modified opinion or modified report. I hope the concept of audit report and the forms of audit opinion is clear to you. In case you have any queries, write down in the comment section below. Also, let me know what other concepts of auditing you want me to discuss in these brief and short videos in the simplified manner. And if you like the video, do hit the like button and share it with your friends. Thank you so much. Bye bye. Take care.